Hello students, it's English 4th standard 11 and today we will study the first poem of Hornbill, Photograph, written by Shelley Tolson. Shelley Tolson is the poet. It's the first session. In this session, first of all, we will learn about the poet. Then after, it will be summary on this poem. Then after, glossary in which we will learn important words based on this poem. Then after, it will be explanation on each stanza, line by line explanation. Then figure of speech, the poetic device is used in the given poem. And finally, it will be question answer session in which we will learn important questions and its answer based on this poem. So let us study, get information about the poet. Shirley Tolson has nicely described the relation of mother and daughter. Here, time passes, age proceeds, and at that time, the past memories. How do these memories make a person nostalgic? It's nicely described by Shelley Tolson. So let us get information about her. Shelley Tolson. She was born on 20th May 1924 in Hanley on Thames in England as the daughter of Douglas Horsfall Dixon and Marjorie Brown. She got the at this house. Got the birth from Douglas Horsfall Dixon and Marjorie Brown. They were the parents. She had a huge passion on writing. She was fond of writing and was greatly influenced by her father, who was also a writer too. She secured a BA on literature from Buckenham College in London, which she got in the year 1953. Shortly, she took writing as career, but also served as the editor for many magazines in meantime. राइटिंग उसका हॉबी था. शी एक्सेप्टेड राइटिंग एज her career, but with that, beside this, she also contributed in the field of journalism. She worked as an editor for many magazines. She married Alan Brown John on 6th February 1960. 1960 पे 60 में उसका मैरिज हुआ. They had 3 children. They are Janet Sayers, Ian Tolson, and Stephen Brown John. But after 9 years, they divorced on March 1969. Celtic Christianity influenced her greatly, that most of her major works like Celtic Alternative in 1987 and Celtic Year in 1993 were on that topic. But these works indeed made her more famous. Now it's time for summary. The poem is a tribute to the poet's mother. पोएम सिली टॉल्सन ने लिखी है अपने मदर को ट्रिब्यूट देने के लिए. शी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विच हैज़ अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड. यहाँ से स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है, पोएम स्टार्ट होती है. सिली टॉल्सन पोएट एक ओल्ड फोटोग्राफ है, उसको देखती है, जो फोटोग्राफ उसके मदर का है, और उस फोटोग्राफ का जो फ्रेम है वो कार्डबोर्ड का है. द पिक्चर हैज 3 गर्ल्स इन विच द मिडल वन इज द ओल्डेस्ट एंड टॉलेस्ट.
ये पिक्चर जो देख रही है पोएट, उसमें 3 लड़कियां हैं और उसमें से जो बीच में जो लड़की खड़ी है वो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे टॉलेस्ट है और वही पोएट के मदर है. इट इज हर मदर व्हेन शी वॉज 12 years ओल्ड और सो. ये जो इन द मिडल जो लड़की है बीच में खड़ी हुई है वो पोएट के मदर है और ये जो फोटोग्राफ है वो तब की है जब उसकी मदर 12 years ओल्ड हुआ करती थी. उसकी एज थी वो 12 साल के आसपास थी, तब का ये फोटो है. और ये फोटो सिली टॉल्सन पोएट देख रहे हैं. बिसाइड हर, उसके पास उसकी मदर जो खड़ी है इस फोटो में, उसके आजू बाजू ऑन बोथ साइड्स आर हर 2 cousins. दोनों साइड, ऑन ईच साइड्स उसके कजिन्स है. आप देख सकते हैं फोटो में, बेटी एंड डॉली. उसके नाम क्या है कजिन्स के? बेटी एंड डॉली. एक किसके कजिन है? उसके मदर के कजिन है, उसकी मम्मी है उसके कजिन है. वो आर होल्डिंग हर हैंड्स एंड आर यंगर देन हर. वो दोनों लड़कियां, बेटी एंड डॉली, दोनों ने उसके मदर के हाथ पकड़े हुए हैं और दोनों मम्मी से छोटी है, यंगर है. बोथ आर यंगर देन पोएट्स मदर. दे वेंट फॉर पैडलिंग ऑन अ बीच हॉलीडे. और ये फोटो है कहाँ की है? ये तीनों लड़कियां हॉलीडे पर, बीच हॉलीडे पर पैडलिंग के लिए जाती है. पैडलिंग का मतलब होता है ऐसे शैलो डीप वाटर होता है, उसमें पैर फुट चलना, पानी में चलना बीच पे. हर अंकल टुक द फोटोग्राफ देन. और तब उसके अंकल ने ये फोटोग्राफ खींची हुई है. द पोएट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर्स स्वीट फेस. और अब पोएट के हाथ में कुछ नहीं है, उसकी मम्मी नहीं है, पर वो सिर्फ उसके मम्मी का जो प्यारा सा चेहरा है वो अभी देख रही है. द सी टच्ड हर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट which depicted that she changed over the years and the sea remained the same. ये फोटो जहां ली गई है वहां पे उसके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, देखिए टेरिबली ट्रांजिएंट फीट एक एलिट्रेशन होता है. ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, जो ज़्यादा वक्त नहीं रहता है, विच इज़ नॉट परमानेंट. तो बीच पे लोग चलते हैं ना तो उसके फुटप्रिंट ऐसे वहाँ पे हो जाते हैं. तो ये ट्रांजिएंट जो फीट है वो दे आर नॉट फॉर एवर, यू नो, दे विल बी रिमूव्ड बाय द वाटर, बाय द वेव्स. एंड नाउ द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड अ लेस. अब सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है, जो सी था जहाँ पे ये लोग गए थे बीच पे, वो बिल्कुल नहीं बदला है. बदला तो क्या बदला है? सिर्फ उसके जो ट्रांजिएंट फीट वहाँ पे थे, फुटप्रिंट, वो चले गए हैं. कहने का मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ उसकी मम्मी अब नहीं रही है, पर पुरानी चीज़ें तो वैसे की वैसे ही है. ओल्ड मेमोरीज वो वैसे ही है. प्रेजेंटली चेंज इतना ही है कि उसकी यादें, देखिए फुटप्रिंट के फॉर्म में है यहाँ पे, ट्रांजिएंट फीट वो चले गए हैं. दैट सी चेंज्ड ओवर द ईयर्स एंड द सी रिमेन्ड द सेम. और वो सी है वो वैसा का वैसा ही है अभी. आफ्टर 20-30 years, देखिए दूसरा फेज है एक बचपन का, जब उसकी मम्मी छोटी थी और पिकनिक पे गई थी और वहाँ पे ये फोटो खिंचवाई थी. आफ्टर 20-30 years हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ. देखिए उसके बाद 20-30 years 20-30 साल के बाद ये फोटो है ना, देखकर मदर, मानी पोएट की मदर है, वो हंसती है. शी वुड मेक द पोएट लुक एट द फोटोग्राफ. और वो फोटो जो बचपन में मम्मी ने ये बीच पे खिंचवाई थी, वो फोटो पोएट को दिखाती है मदर, और फोटो देखकर वो हंसती है. माँ के लिए तो ये उसका पास्ट है. और ये किसे फोटो दिखा रही है? पोएट को मम्मी दिखा रही है, मदर, पोएट की मदर उसको दिखा रही है. एंड टेल हर हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस देम अप फॉर द बीच हॉलीडे. और मदर पोएट को कहती है कि देखो किस तरह से हमें
बीच हॉलीडे के लिए जाने के लिए पेरेंट्स ने हमको ड्रेस अप किया था, किस तरह से हमको कपड़े पहनाए गए थे, मीन्स एकदम से रेडी किया था। वी वेर गॉट इन अटायर्ड बाय द पेरेंट्स। तो ये सारी मेमोरीज है वो पोएट से माँ शेयर करती है। द बीच हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट पास्ट memories while her laughter was the poet's favorite memory। उस वक्त जब ये फोटो दोनों देख रहे हैं, उस वक्त की बात है, तब क्या था, माँ के लिए ये बीच हॉलीडे के जो मोमेंट्स थे वो उसके पास्ट मेमोरीज थे, और पेरेंट्स के लिए और पोएट के लिए क्या था, उस मम्मी की हंसी, उस वक्त फोटो देखकर जो हंस रही थी वो अब पोएट के लिए पास्ट मेमोरीज है। मानी दोनों के लिए अपना अपना पास्ट है। पोएट के लिए माँ फोटो देखकर जो हंसती है वो स्माइल, वो फेस, वो पास्ट मेमोरी अब बन गया है, और माँ के लिए जब वो फोटो देख रही थी तब उसके जो बीच हॉलीडे के मोमेंट्स थे वो उसके लिए पास्ट मेमोरीज हुआ करते थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग विच दे चेरिस्ड अ लॉट। दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है, एंड येट कैन नॉट लीव दैट मोमेंट अगेन। एंड अब वो मोमेंट चले गए हैं, अब वो दोबारा मोमेंट नहीं आ सकते। दे कैन नॉट लीव दोज मोमेंट्स अगेन। दो स्वीट मोमेंट्स वेर मेमोरीज नाउ। और ये पल जो चले गए हैं अब वो यादें बनकर रह गए हैं। Now the poet's mother had been dead for the past 12 years। और अब पोएट के मदर है वो चले गए हैं, उसके डेथ को कितने साल हो गए, 12 ईयर्स हो गए हैं। और 12 ईयर्स के बाद पोएट है ये फोटो देखकर अपने पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे हैं। विच इज द सेम नंबर एज ऑफ हर एज व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन बैक देन। ये कितने साल हो गए उसको उसके डेथ को, उतने ही साल हो गए हैं जितने साल उसने फोटो खिंचवाए तब उसके थे। मानी जब फोटो खिंचवाए तब वो 12 इयर्स के थे मदर, और आज जब पोएट वो फोटो देख रहे हैं तब उसके मदर को गए कितना वक्त हो गया, 12 साल हो गए। शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस। पोएट ये जो दर्द है, ग्रीफ है उसकी मम्मी का नहीं रहना, उसके मदर का जो एब्सेंस है उसको लेकर वो माँ को इतना मिस कर रही है, और उससे जो ग्रीफ एक क्रिएट होता है, एक दर्द उसके दिल में जो है वो बयान नहीं कर पा रही है। शी कैन नॉट एक्सप्रेस। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस पोएम। नाउ ग्लोसरी, a few important words। Cardboard is used here for photograph। Paddling it means to walk with barefoot in shallow water। पानी में चलना, splash about कहते हैं, wade भी कहते हैं, dabble भी उसे कहा जाता है। Still का मतलब होता है unmoving, without any movement। टेरिबल का मतलब होता है एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा। एंड ट्रांजिएंट का मतलब है टेम्पररी, मोमेंटरी, जो थोड़ी देर के लिए रहता है, जो ज़्यादा वक्त नहीं रहता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजाज। फर्स्ट स्टेंजा पहले हम पढ़ लेते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। देखिए ऑन द लेफ्ट साइड ये कार्डबोर्ड है, ये फोटो देख रहे हैं। हाउ इट वॉज, वो कैसे मोमेंट थे। when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands। जब टू गर्ल कजिन्स, ये कौन है, डोली एंड बैटी, ये दोनों कजिन्स है, वो जब पैडलिंग के लिए गए थे, बीच में गए थे हॉलीडेज के लिए, बीच हॉलीडेज को, तब ये दोनों पैडलिंग के लिए गए थे। पैडलिंग का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि पानी में चलना, शैलो वाटर में चलना, वो भी बैरफुट चलना। और ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों लड़के, दोनों कजिन हैं, उसने मेरी मम्मी के हाथ पकड़ के रखे थे, दोनों एक एक साइड पे थे, ऑन ईच साइड्स, एंड दे हेल्ड माई मदर्स हैंड्स। एंड शी, द बिग गर्ल, सम 12 years or so। एंड शी स्टैंड्स फॉर पोएट्स मदर। शी कौन है यहाँ पे, पोएट की मम्मी है, और वो कैसी है, द बिग गर्ल, इन तीनों लड़कियों में सबसे बड़ी
पोएट्स मदर है और उसकी एज यहाँ पे मेंशन की गई है सम 12 इयर्स और सो, करीबन उसकी उम्र इस फोटोग्राफ में दिख रही है 12 साल के आसपास उसकी उम्र दिखाई गई है। यहाँ पे आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं बच्चों, देखिए इन द मिडल शी इज पोएट्स मदर, ऑन द अदर साइड they are her cousins, they are Betty and Dolly, and they are on beach holidays, they are there for paddling, and this has been captured in form of a cardboard which the poet is looking at now and sharing those moments with us. Now its explanation on this first stanza. In these lines the poet is looking at an old photo. यहाँ पे वो एक पुरानी फोटो देखते हैं पोएट, फोटो एल्बम विच इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड, जो कि कार्डबोर्ड का बना हुआ है. इन द पिक्चर देर आर 3 गर्ल्स हु आर वॉकिंग ऑन द बीच होल्डिंग ईच अदर्स हैंड. पिक्चर में 3 लड़कियां हैं और तीनों के तीनों बीच हॉलीडेज पर है यहाँ पे, और एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं. यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं. The girl in the middle is the tallest and oldest. The other 2 girls on each sides are younger than her. बीच में जो लड़की है वो सबसे बड़ी है और सबसे टॉलेस्ट भी है, और बाकी जो लड़कियां हैं ऑन द आइदर साइड्स वो उससे छोटी है. द गर्ल इन द मिडल इज द पोएट्स मदर. बीच में जो लड़की है वो पोएट की मम्मी है. शी इज अराउंड 12 years old. करीबन उसकी उम्र कितनी है? 12 साल है. When the picture was taken. ये कब की बात है? जब ये पिक्चर खींची गई थी. All 3 stood still to smile through their hair. तीनों के तीनों कैमरे के सामने खड़ी रह जाती है. स्टिल का मतलब होता है विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी मूव, ऐसे ही स्टेबल स्टिल एकदम से खड़ी रह जाती है. और देखिए यहाँ एक्सप्रेशन दिए है स्माइल थ्रू देयर हेयर. अपने जो बाल है वो ऐसे ओपन कर दिए है और बालों में से वो हंसती है. तो मीन्स जब उसका चेहरा है तो बीच में बाल दिखते हैं, तो लिखा हुआ यहाँ है कि स्माइल थ्रू देयर हेयर, और वो अपने बालों से हंसती हुई दिखती है. और कहाँ देख रही है? ऑन कैमरा. कैमरा पे उसका ध्यान पड़ा हुआ है. एट द अंकल विद द कैमरा. और वो कहाँ हंसती है? अंकल के सामने जो कैमरा के साथ खड़े हुए हैं. अ स्वीट फेस. और माँ का ये प्यारा सा चेहरा. माई मदर्स, देखो लिखा मेरी मम्मी का प्यारा सा चेहरा. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. और ये चेहरा कब का है? जब मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था, मेरे बर्थ से पहले. तो देखिए ये पहला फेज है जो यहाँ शेयर करते हैं हमसे, वो है बिफोर द बर्थ ऑफ पोएट. पोएट का बर्थ नहीं हुआ था तब माँ और उसके दोनों कजिन्स बेटी एंड डोली वो कहाँ पे गए थे? बीच हॉलीडेज पर गए थे. तो ये यहाँ तक का फर्स्ट फेज है, वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं. इस पर सेकेंड स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन. इन द अबव लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द फोटोग्राफ वॉज टेकन. यहाँ पे बताया गया है कि फोटो कैसे लिया गया था और तब मोमेंट्स कैसे थे, एक्सप्रेशन कैसा था. हर मदर्स अंकल टुक द फोटोग्राफ एंड टोल्ड देम टू स्टॉप एंड पॉज. मम्मी के जो अंकल है उसने फोटोग्राफ खींची थी और उसने कहा था कि आप अपना पोज इस तरह से कैमरे के सामने बनाइए. All 3 of them left their wet hair open and smile at the camera. तीनों अपने बाल ऐसे खोल के हंसती है कैमरा के सामने. Poet's attention is drawn towards his mother's face. और पोइट का जो ध्यान है वो माँ के चेहरे पर खींचा जा रहा है. विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ स्वीट फेस. और ये मोमेंट है, ये जो पोज है माँ का फेस का, उसे यहाँ पे स्वीट फेस कहा गया है पोइट के थ्रू. पोइट ने कहा है द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोइट वॉज बोर्न. और ये फोटो पोइट के बर्थ से पहले खींची गई है.
सो आज के सेशन में स्टेंजर्स नाउ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन्स. The cardboard shows me how it was when the two girls cousins went paddling. तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं. पहले तो मैट्रोनोमी होता है. देखिए कार्डबोर्ड है, वो सही में कार्डबोर्ड नहीं है, पर सही में वो फोटोग्राफ है. तो कार्डबोर्ड यहाँ पे एक फोटोग्राफ को प्रेजेंट करता है. इट मेक्स इट मैट्रोनोमी. सेकेंड लाइन, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. देखिए यहाँ पे हैंड्स का मतलब है हैंड्स रिप्रेजेंट्स द मदर ओनली, मदर हरसेल्फ ओनली. सो हैंड स्टैंड्स फॉर द होल, as a whole body, and that's why it makes synecdoche. The word one, you can see each one holding one of my mother's hand. One. The word is repeated, and that's why it is a repetition. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. यहाँ पे पहले तो एलिट्रेशन हो रहा है. stood still to smile, स यू नो कॉन्सोनेंट साउंड एस है, वो रिपीट हो रहा है बार बार. stood still smile, and that's why it is alliteration. A sweet face my mother's that was before I was born. स्वीट फेस, देखिए अगेन यहाँ पे फेस है, इट प्रेजेंट्स द मदर ओनली, द होल पर्सन, एंड दैट्स वाई इट मेक्स इट synecdoche. नाउ क्वेश्चन एंड आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, what does the word cardboard denote in the poem? Cardboard word है, वो क्या denote करता है? Why has this word been used and why the poet has used this word? The word cardboard in the poem refers to the photograph. Here a spell mistake, photograph, pho, please take it like that. Cardboard है वो photograph present करता है किसका? Of the poet's mother enjoying a sea holiday with her two cousins. कजिन्स के साथ बीच हॉलीडेज एंजॉय करते हुए ये फोटोग्राफ लिया गया है. इस फोटोग्राफ के लिए कार्डबोर्ड वर्ड्स डिनोट किया गया है. और कब ये गए हैं ऑन बीच हॉलीडे विथ हर टू कजिन्स? व्हेन शी वाज 12 years old. द कार्डबोर्ड स्टैंड्स फॉर द फ्रेम दैट सपोर्ट्स एंड होल्ड्स द फोटोग्राफ. कार्डबोर्ड्स वो एक फ्रेम सजेस्ट करते हैं, यू नो, विच होल्ड्स द फोटोग्राफ, एंड एज अ होल इट प्रेजेंट्स फोटोग्राफ. It signifies that life is transient and what remains is an insignificant piece of paper. ये क्या सिग्निफाइज करता है कि लाइफ तो ट्रांजिएंट है, इट्स नॉट फॉर एवर, पर वो जो मोमेंट्स रह जाते हैं जिस चीज़ों के साथ जुड़ के, वो इनसिग्निफिकेंट पीस ऑफ पेपर. मानिए यहाँ कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड तो वही का वही है, पर वो लाइफ चली गई है. सेकेंड क्वेश्चन, what has the camera captured? The camera has captured some happy childhood moments of the poet's mother when she has gone for a sea holiday with her two cousins Dolly and Betty. The girls were paddling in the water and enjoying the moment. The photograph clicked by mother's uncle, it shows the girls' innocent smiling faces while their hair was flying over their faces. So these are the moments captured in camera. That's it. Thank you.